Hi students, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 5 of mole concept. In this lecture we will discuss equivalent weight and the methods how we are going to determine equivalent weight, and the question is related to equivalent weight determination. Those questions will be important for your this NEET and JEE type of examination. So let us start the topic, that's equivalent weight. Equivalent weight. बेसिकली इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसको हम कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट को अगर निकालना है तो हमें मोलर मास को डिवाइड करना है बाय एन फैक्टर। वी हैव टू डिवाइड द मोलर मास बाय दिस एन फैक्टर। तो यहाँ पे एक नई टर्म जो आती है दैट इज दिस एन फैक्टर। तो इस एन फैक्टर की कहानी को हम जानते हैं। ये जो हमारा एन फैक्टर है इट डिफर्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। सो विल सी इन व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स what are the ways by which we are going to determine this n factor. So case number first जो हमारा है n factor determine करने का, that is the case for acids. So in case of acids how we are going to determine n factor. So in case of acids this n factor is equal to, or you called it valency factor as well, this n factor is equal to basicity of acid. It is basicity of acid. Now what is basicity of an acid? Basicity of an acid is actually the number of ionizable H plus ions furnished. H plus ions furnished. तो जितना एक एसिड H plus ions furnish करेगा, जितना कोई एसिड H plus ions furnish करेगा, that's called its basicity. That's called its basic furnish. तो इस आयनाइजेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्चुअली इस आयनाइजेबल टर्म का मतलब जानिए। आयनाइजेबल प्रोटॉन किसको कहते हैं? कोई भी प्रोटॉन अगर हमारा अटैच है टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक योर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक योर नाइट्रोजन, देन दिस प्रोटॉन इज कॉल्ड आयनाइजेबल प्रोटॉन। बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यू कैन ब्रेक इट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड यू विल गेट H+। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यू कैन ब्रेक इट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यू विल गेट H+। तो बेसिकली बस ये कंसेप्ट है, जब भी हमारे पास एसिड होगा एन फैक्टर विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। व्हाट इज बेसिसिटी? इट इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयंस फर्निश्ड बाय एन एसिड। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है दैट्स H2SO4। तो अगर मैं H2SO4 को देखूंगा, H2SO4 की स्ट्रक्चर मुझे पहले पता होनी चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। इट्स एन ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड इज व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन double bond O and one OH group. This is the quality of, this is the pictorial representation of oxo acid. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे this hydrogen it is attached to more electronegative atom, means this hydrogen it is ionizable, this proton is ionizable, this proton as well is ionizable. Why? Because it's attached to oxygen atom, more electronegative atom. So in this case these two hydrogens can be removed. How they can be removed? How we can ionize it? So basically this bond will break towards oxygen, this bond will break towards oxygen, you will get SO4 2 minus one negative charge you are here, one here, plus you will get twice H+. So basically जो आपका H2SO4 है it gives two ionizable protons, therefore H2SO4 जो है इसकी basicity 2 है, इसकी basicity 2 है। Basicity 2 means it is dibasic acid. So this is dibasic acid. तो इसकी बेसिसिटी 2 है, मीन्स जो इसका एन फैक्टर है दैट्स इक्वल टू 2, इसका एन फैक्टर 2। बस अगर आपको एन फैक्टर मालूम हुआ यू कैन नाउ डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2SO4? तो मोलर मास को यहाँ से कैलकुलेट करो। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 into 4 दैट इज 64, और हाइड्रोजन का एक है 2 into 1 that is 2. So this comes out to be 98. So equivalent mass will be equal to 98 divided by n factor, which is 2 in the present scenario. So it is divided by 2, 249 is 98. So over here the equivalent weight comes out to be 49. Over here the equivalent weight comes out to be 49. 1 second. 1 second, the light has gone.
So this is the case of acids. In case of acids, we determine this. So number second is we will take other examples. We will take few more examples. So let us take other example. Let me take other examples. Let me take this example. H3PO4, H3PO3 and H3PO2. These are oxo acids of phosphorus. तो अगर मैं इन ऑक्सो एसिड्स को देखूंगा, फर्स्ट आई हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स। तो H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या है? एटलीस्ट आपको एक पी डबल बॉन्ड O बनाना है। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको सेटिस्फाई करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग OH। तो यहाँ पे मैंने OH लगाया, यहाँ पे एक और OH लगाया। अभी एक O पेंडिंग है, एक H पेंडिंग है, तो एक और OH लगाया। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनानी है, पहले हम पी डबल बॉन्ड O को बनाएंगे, उसके बाद OH, उसके बाद OH। आपके ऑक्सीजन 1 2 3 बैलेंस हो गए, एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है, दैट्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना पी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, दोनों ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए। तो उसके बाद हाइड्रोजन विल बी डायरेक्टली बॉन्ड टू फॉस्फोरस। सो यहाँ पे अगर देखेंगे आयनाइजेबल प्रोटॉन्स कितने हैं, दिस वन इज आयनाइजेबल, दिस वन इज आयनाइजेबल एंड दिस वन इज आयनाइजेबल। तो यहाँ पे आपका n फैक्टर इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे देखोगे दिस इज आयनाइजेबल प्रोटॉन, ये भी आपका आयनाइजेबल प्रोटॉन है, बट दिस इज नॉट आयनाइजेबल बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका n फैक्टर दैट्स इक्वल टू 2। सो इन दिस केस आपका n फैक्टर इज इक्वल टू ओनली 1 बिकॉज आपका जो प्रोटॉन है आयनाइजेबल प्रोटॉन दैट्स ओनली 1। तो यहाँ पे आपका n फैक्टर इज इक्वल टू 1। बस n फैक्टर निकल गया, उसके बाद आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलर मास हमें जानना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ फास्फोरस इज 31 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो इट कम्स आउट टू बी 16 into 4 दैट इज 64 प्लस 3, सो दिस विल कम आउट टू बी 98। बस यहाँ पे 98 मोलर मास लिखो, उसके बाद नीचे आप n फैक्टर 3 लिखो, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो पहले मोलर मास निकालो। तो इसका मोलर मास 31 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 3 into 48 प्लस आपके पास 3 हाइड्रोजन है। So this will come out to be 8199312. This will come out to be 3134. 48 plus 34, and this will come out to be 92. So यहाँ पे आपका मोलर मास 92 है डिवाइड बाई 2। So अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी मोलर मास। मोलर मास विल बी, इसका 31 है, हाइड्रोजन का 3 है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दैट इज 32। So it comes out to be 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 66. 66 is by 1. So this is the way how you are going to determine molar mass. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, उसके बाद 3 6s are 20, approximately equal to 32.6। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 2 45s are 90, that means 46, तो यहाँ पे आपका 66 आए। So this is the case of acids. How in case of acids you are going to determine this n factor and equivalent weight. Now second हम डिस्कस करेंगे बेसिस। केस नंबर सेकंड हम बेसिस में डिस्कस करेंगे। तो बेसिस के लिए आप n फैक्टर कैसे निकालोगे? n फैक्टर इज इक्वल टू, इन केस ऑफ बेसिस इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स फर्निश्ड बाय बेस, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaOH है, तो NaOH है, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और मेरे पास फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, इट विल गिव मी Na प्लस प्लस इट विल गिव मी OH माइनस, मतलब यहाँ पे एक ही OH निकलता है, देयरफॉर n फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, इट विल गिव मी कैल्शियम 2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, मतलब यहाँ पे आपका n फैक्टर इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे ब्रेक करोगे, इट विल गिव मी, आयनाइज करोगे Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स OH माइनस, मतलब यहाँ पे आपका n फैक्टर इज इक्वल टू 3। बस n फैक्टर निकल गया, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मोलर मास क्या है? 23 ऑफ सोडियम, 1 24 14, दैट इज 40, 40 डिवाइड बाय 1। सो दिस इज इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे अगर निकालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पहले देखेंगे।
कैल्शियम का आपके पास 40 है, OH का आपका 17 है, 72 are 34, so it is 74। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास जो निकलेगा दैट इज 74 डिवाइड बाई 2, 2 3 are 6, 2 7 are 14, इट्स 37। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालो, एल्युमिनियम का 27, OH का है 17 प्लस 17 into 3 दैट्स 51, दिस कम्स आउट टू बी 78। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट मास जो होगा दैट विल बी 78 डिवाइड बाय n फैक्टर दैट इज 3 3 2 are 6, 3 6 are 18, सो इट विल बी 26। तो आई होप आपको एसिड्स और बेसिस के केस पे n फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट्स। अगर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी है दैट्स केस नंबर थर्ड, दैट इज द केस ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में आप n फैक्टर कैसे निकालोगे? सॉल्ट्स में अगर n फैक्टर निकालोगे, हमें पता है जो भी हमारे पास सॉल्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन। तो अगर हमारे पास सॉल्ट है तो कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो हम देखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, जितनी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगी दैट इज द n फैक्टर। और अगर किसी को पॉजिटिव से नफरत है तो वो देखेगा टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब दो में से एक ही को देखना है, इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, दैट्स योर n फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है, मेरे पास फॉर एग्जांपल MgCl2 है, फॉर एग्जांपल मेरे पास AlCl3। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको हम आयनाइज करेंगे, यू विल गेट Na प्लस यू विल गेट Cl माइनस। तो यहाँ पे कैटाइन पे ओनली वन पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर n फैक्टर इज इक्वल टू 1। अगर इसको ब्रेक करेंगे यू विल गेट Mg2 प्लस यू विल गेट Cl माइनस। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, मतलब n फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास अल्युमिनियम है दैट्स Al3 प्लस थ्राइस Cl माइनस। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो मतलब n फैक्टर आपका 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl का मोलर मास 58.5 है डिवाइडेड बाय n फैक्टर 1। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम का 24 है, क्लोरीन का 35.2। तो दो क्लोरीन है 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 दैट इज 71, 71 प्लस 24 इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर एल्युमिनियम का देखोगे इट इज 27 और क्लोरीन 3 है दैट इज प्लस 35.5 into 3। So this comes out to be 27 plus 3 5s are 15, 3 5s are 15, 16, 3 6 are 9, 106.5। तो इसको हम ऐड अगर करेंगे it comes out to be 133.5। So in this case equivalent weight will be equal to 133.5 divided by 3। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट, हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम और भी कुछ फार्मूलाज है जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, उनको देखते हैं। तो मेरे पास फार्मूला है that's by oxide formation method. Number fourth way is case number 4 is by oxide formation method. By oxide formation method. Now what is this method? Oxide formation method। तो इस मेथड को मैं यूज करूँगा। ऑक्साइड फॉर्मेशन मीन्स मेरे पास कोई एलिमेंट E है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। तो जब भी आपका कोई एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली आपका एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा, isn't it? तो बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? इट्स वेरी सिंपल, आपको लिखना है मास ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनाता है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, जिस मतलब जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इस ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 8 यहाँ पे याद आप रखोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखते हैं। तो बस आपको ये वाली फार्मूला लिखनी है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। ये आपके पास फार्मूला आती है बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इस पे हम अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे, विल सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो फिफ्थ केस हमारे पास है बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। बाय क्लोराइड फॉर्मेशन, What is the formation of chloride? तो हमारे पास कोई एलिमेंट E होगा, it will react with chlorine and it will result in the formation of chloride। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है, it will be equal to मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये वाला एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 35.5।
दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। नाउ ऑन दिस बेसिस लेट अस ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तो अब हम देखेंगे क्या हमसे क्वेश्चन बनी गया नहीं। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई 2008। जेईई 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एन अननोन एलिमेंट, मेरे पास कोई एलिमेंट अननोन है ई। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड मींस इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब मेरे पास एक और एलिमेंट है, दैट्स ऑक्सीजन। दे रिएक्ट टुगेदर, दीज टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ऑक्साइड। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना है। If the content of the, if the oxygen content is 20% by mass, if the percentage of oxygen is 20%, not 23, 20%। बस जब भी आपके पास दो ही एलिमेंट्स होंगे तो एक ही परसेंटेज अगर पता है, यू कैन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ अदर। तो अगर मुझे निकालनी है परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट ई, इट विल बी इक्वल टू 100। आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकालेंगे, एक ही पता है दूसरे की निकलेगी, मतलब 20। 100 माइनस 20, तो इस ऑक्सीजन की परसेंटेज को 100 से सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ई, दैट्स 80%। तो बाय परसेंट मींस दिस इज द मास ऑफ द ई एंड दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन। बस उसके बाद ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड को यूज करके हम निकालेंगे इसमें इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। सो दिस इज द एलिमेंट। एलिमेंट का मास कितना है? इट्स 80%, मींस इसका मास 80 है, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इट्स 20%, मतलब इसका मास 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ से आप 0 और 0 को कैंसिल करोगे, 2 1 जार 2, 4 जार 4, 8 जार 32। So the correct answer for this question comes out to be 32. So the correct answer is option number B, that is 32. See how simple the questions are. Only we should know the basics of the topic. Now we have one more type of the question. The percentage of element of metal M is 53. तो हमारे पास कोई element है M जिसकी percentage है 53. It is present 53%. इन इट्स ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो अगर इसकी परसेंटेज पता है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी 100 माइनस 53। 100 माइनस 53 मींस इट विल बी 47%, इजंट इट। तो दोनों की परसेंटेज हमें मिल गई, दोनों की परसेंटेज मिल गई। बस हमें ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड को यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, जो हमारे पास m है, इसका मास दैट इज 53, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, जो इसका मास है दैट्स 47, मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट मास निकलेगा। इसको सॉल्व करके आप इक्विवेलेंट मास, इट विल कम आउट टू बी 9। सो इक्विवेलेंट वेट कम्स आउट टू बी 9। लेकिन पूछा क्या गया है? इट इज आस्क्ड इट्स एटॉमिक मास इज। तो हमें निकालना है एटॉमिक मास, मतलब हमें इक्विवेलेंट मास आ गया, हमें एटॉमिक मास निकालना है। मींस रिलेशन को ढूंढना है बिटवीन एटॉमिक मास एंड इक्विवेलेंट मास। तो राइट डाउन द रिलेशन एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो बस इक्विवेलेंट मास आपके पास आपने निकाला है, दैट्स 9 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है दैट्स M2O3। अगर आप इस ऑक्साइड को ब्रेक करोगे, यू विल गेट ट्वाइस M and you will get O3 2 minus. So in this case the charge on the oxygen is -6. So the charge on the metal, it should be +6. So it should be twice M, 3 plus 2, 3 are 6. So since the positive charge over here is 3, therefore n factor is 3. तो ये हमारा n factor है। तो multiplied by 3, this comes out to be 27. Now question आपसे ये है, क्या ये 27 ग्राम है और ये 27 AMU है? Now how you can determine? Since आपको atomic mass पूछा गया है, atomic mass is always expressed in AMU, तो आपका आंसर बनेगा 17 AMU। आपका आंसर बनेगा 17 AMU। होप ये बात आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट में सॉल्व करूंगा, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो हमारे पास KMNO4 है, KMNO4। अगर आप KMNO4 को आयनाइज करोगे, यू कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज K प्लस MnO4 माइनस। मतलब हमारे पास दिस पर मैग्नेट आयन, दिस इज MnO4 माइनस। तो MnO4 minus, it's a very good oxidizing agent. It's oxidizing agent. It's oxidizing agent in acidic medium, in basic medium, and in neutral medium. In acidic medium, in basic medium, and in neutral medium.
तो हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट मास इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो पहले हम एसिडिक मीडियम को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम को लिखेंगे, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम को लिखेंगे। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए इसकी रिएक्शन है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब H+ देगा आपको, बेसिक मीडियम मतलब आपको देगा OH-, मतलब आपके पास MnO4- है। In presence of acid, it gets converted into Mn+. This reaction takes place always and always when we have acid. So acidic medium में हमारा MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है, इट्स इक्वल टू मोलर मास, जो हमें पता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो बेसिकली आपको एन फैक्टर निकालना है। नाउ इन रिडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज यहाँ पे क्या होगी, लेट x बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। इस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, 4 2s are -8 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +7। अब देखना है इस रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज कितना हो रहा है। तो यहाँ से आपका +7, यहाँ से आपका +2, therefore change is +5 or you can simply say 5. So n factor for this reaction it's equal to 5. अगर n फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास। तो KMnO4 का मोलर मास आप निकालो, KMnO4 का आप मोलर मास निकालो। पोटेशियम का मोलर मास आपके पास 39 है और मैग्नीज का मोलर मास यहाँ पे 54 ऐड करो प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास दैट इज 64। So this will come out to be this is 39. So this will come out to be 64 plus 54 plus 39. 4 plus 4 8, 8 plus 3 1. So this is 64, that's 64, this is 54, this is 39, this is 9. 4 plus 4 8, this is 7. 4 plus 4 8, 8 plus 9, that is 17. 6 is 12 plus 3 50, 157. So this comes out to be 157 divided by n factor, that is 3, that is 5. तो एसिडिक मीडियम में आपको 5 से मोलर मास को डिवाइड करना है, मोलर मास बाय 5। मोलर मास तो एक बार आप फिर चेक कर सकते हो। सो एसिडिक मीडियम में आपका इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास बाय 5। तो बेसिक मीडियम की बात करेंगे और न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे। एसिडिक मीडियम में हमने निकाला मोलर मास बाय 5। अब बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे। तो हम रिएक्शन देखेंगे एक्चुअली बेसिक मीडियम में होता क्या है और न्यूट्रल मीडियम में होता क्या। तो लेट मी चेक इट अगेन। तो हमारे पास अगर बेसिक मीडियम है तो आपका KMnO4 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4 -. दिस MnO4- गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4 -. बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 8 इज इक्वल टू -2, दैट्स +6। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इट्स 1, देयरफॉर n फैक्टर इज इक्वल टू 1। n फैक्टर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ MnO4 और KMnO4 डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर, दैट्स 1। हम न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे। अगर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम होगा तो MnO4 किसमें कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये 3 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। एसिडिक मीडियम में MnO4- कन्वर्टेड इनटू Mn2+। बेसिक मीडियम में MnO4- is converted into MnO4 and in neutral medium MnO4- is converted into MnO2। तो बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2s are 4, दैट्स +4 है। Change in oxidation state comes out to be +3. So n factor in this case is equal to 3. अगर n factor 3 है तो equivalent weight will be equal to molar mass or molar weight divided by 3. So this is the concept. Similarly आपको K2Cr2O7 को यहाँ पे explain करना है। K2Cr2O7 in acidic medium and basic medium and in neutral medium कितने एक्चुअली इसका n फैक्टर क्या है, उसके बाद आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आई होप ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर लाउड वंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।